شمالی وزیرستان میں امن دشمنوں کا بزدلانہ حملہ، پاک افغان بارڈر پر سرحد پار سے دہشت گردوں کی فائرنگ، فوجی چوکی کو نشانہ بنایا، سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کی فائرنگ پر مؤثر جوابی کارروائی۔ ISPR کا کہنا ہے فائرنگ کے تبادلے میں 32 سالہ سپاہی عمر دراز شہید۔ پاکستان کی جانب سے مسلسل افغان سرزمین دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال ہونے کی مذمت۔ پاکستان متعدد بار پاک افغان مؤثر بارڈر مینجمنٹ کا معاملہ اٹھا چکا ہے۔ بھارت میں کورونا سے روزانہ ہزاروں ہلاکتیں، پھر بھی وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے ذمہ دار پاکستانی حکام غافل۔ کورونا میں مبتلا بھارتی سفارتی اہلکار کی اہلیہ اسلام آباد پہنچ گئی۔ منجو نامی خاتون 12 بھارتی سفارتی اہلکاروں کے ہمراہ واگا بارڈر کے راستے پاکستان آئیں۔ پنجاب ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے ٹیسٹ میں منجو میں وائرس کی تصدیق۔ سفارتی اہلکار کی اہلیہ منجو کو واپس بھیجنے کے بجائے بھارتی سفارت خانے بھیج دیا گیا۔ سفارت خانے میں ہی قرنطینہ کی ہدایت۔ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے اور والدین پریشان بھی ہوں گے، ہونے بھی چاہیے، ہم بھی بڑے پریشان ہیں۔ بچوں کی صحت کا بھی ایشو ہے، وائرس بھی تیزی سے پھیل رہا ہے کراچی میں، حیدرآباد میں، سکھر میں۔ سندھ میں لاک ڈاؤن 2 ہفتے کے لیے بڑھا دیا گیا، پیر سے اسکول نہیں کھلیں گے۔ سندھ ٹاسک فورس کے اجلاس میں فیصلہ، اسکول کھولنے کا فیصلہ کورونا صورتحال بہتر ہونے پر کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم کو اساتذہ کی ویکسینیشن کا بندوبست کرنے کی ہدایت۔ سعید غنی کا کہنا ہے بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے لیکن ان کی صحت عزیز ہے، اساتذہ کو ترجیحی بنیاد پر ویکسین لگائیں گے۔ سی ویو، ہاکس پے، پارک، شادی ہالز بند رہیں گے۔ کاروبار شام 6 بجے تک کھلے گا۔ ٹرانسپورٹ میں 50% مسافر بٹھانے کی اجازت ہوگی۔ پروپیگنڈا ہے ویکسین کے خلاف، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آج کل، جب آپ انجیکشن لگاتے ہیں ایریا کو ڈرائی کر دیتے ہیں، جب وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں وہاں پسینہ نہیں ہے، آپ کی باڈی سے وہ چپک جاتے ہیں۔ اس کے اوپر اتنی بڑی کسی نے سازش کریٹ کر دی کہ پتہ نہیں کون مائکرو چپ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کورونا ویکسین کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر ترجمان سندھ حکومت کا رد عمل۔ مرتضی وہاب بولے، کہا جا رہا ہے ہمارے جسم میں چپ لگائی جا رہی ہے، کوئی میگنیٹ لگا کر دکھا رہا ہے، عجیب مہم چلائی جا رہی ہے، شہری افواہوں پر کان نہ دھریں، ویکسین لگوائیں۔ SOPs کی پابندی کے ساتھ 24 مئی سے سیاحت کی اجازت۔ NCOC کا اعلامیہ جاری، ہوٹل، گیسٹ ہاؤسز سیاحوں سے کورونا منفی رپورٹ طلب کریں۔ ویکسینیٹڈ افراد اپنا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی جمع کروائیں گے۔ داخلی راستوں پر سیاح ہیلتھ ڈکلیریشن فارم پر کریں۔ ٹور آپریٹرز اور ہوٹل مسافروں کا ڈیٹا فراہم کرنے کے پابند ہوں گے۔ غیر ملکیوں کے لیے ٹیسٹ، قرنطینہ، ویکسینیشن پالیسی پر عمل لازمی قرار۔ ایک تو کورونا، اوپر سے بجلی کا رونا۔ کراچی میں 11 گھنٹے بعد بھی بجلی کی سپلائی مکمل بحال نہ ہو سکی۔ گلستان جوہر، لانڈھی، لیاری سمیت کئی علاقوں میں بجلی کی بندش۔ 2 ہائی ٹینشن لائنیں ٹرپ کرنے سے شہر قائد میں بجلی کا بحران پیدا ہوا۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا کر 9 گھنٹے تک کر دیا گیا۔ شدید گرمی میں شہری بلبلا اٹھے۔ بن قاسم پاور اسٹیشن کے ایک یونٹ میں بھی فنی خرابی، گیس انسٹالیٹنگ سسٹم لیک کر گیا، بجلی کی پیداوار بند۔ ملتان میں عطائی نے ماں سے 3 بچے چھین لیے، جعلی دوا نے والدین کو بے اولاد کر دیا۔ ہنستا بستا گھر ماتم کدے میں تبدیل۔ غم سے نڈھال ماں نے بتایا کھانسی کی دوا سمجھ کر بچوں کو دی، جس کے بعد حالت بگڑ گئی۔ 11 سالہ دانش اور 8 سالہ سائرہ اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ تیسرا بچہ دوسرے دن انتقال کر گیا۔ پولیس نے عطائی سلیم کو گرفتار کر کے کلینک سیل کر دیا۔ دوائیوں کی فورنسک اور پوسٹ مارٹم کے بعد کارروائی کی جائے گی۔ 3 بچوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ ایکس سیکیورٹی گارڈ تھا جو 2 سال پہلے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں بردر کمپنی میں ملازم تھا اور یہ اسی رشوت کی بنیاد پہ نکالا گیا تھا 2 ایئرز بیک۔ لاہور میں سیکیورٹی گارڈ نے ڈاکٹر بن کر خاتون کا آپریشن کر ڈالا۔ میو اسپتال کے گارڈ نے ٹیکنیشین کے ساتھ مل کر آپریشن کیا۔ خاتون کی حالت خراب، گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا، مقدمہ درج۔ گارڈ اور OT ٹیکنیشین کی آپریشن تھیٹر لے جانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ گارڈ آپریشن کے بعد 2 دن تک گھر جا کر روزانہ 500 روپے میں پٹی بھی کرتا رہا۔ ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ MS میو اسپتال کا کہنا ہے سیکیورٹی گارڈ کو 2 سال پہلے اسپتال سے نکال دیا تھا۔ سابق ملازم نے پیسوں کی لالچ میں آ کر یہ کام کیا۔
शहबाज शरीफ ने मौशी तरक्की के आदाद-ओ-शुमार पर सवाल उठा दिए। कहा नून लीग ने तरक्की की शरह 5.8% पर छोड़ी थी। इमरान महज 3.9% पर तरक्की का दावा कर रहे हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा हफ्ते में कीमतों में 17% इजाफा हुआ। 50 लाख लोगों को बेरोजगार किया। 2 करोड़ अफराद को बदतरीन गुर्बत में धकेला। तरक्की के अच्छे नंबर्स अब सामने आ रहे हैं। कायदे हिस्स पे इख्तिलाफ घबरा गए थे। सुर्खी पाउडर वाली 1 साल की तरक्की नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो थी अपने आखिरी साल में करने के लिए मुल्क को डिफॉल्ट के करीब छोड़ गई। नून लीग की तरह सुर्खी पाउडर लगाकर तरक्की नहीं दिखा रहे। 1 जुलाई से मौशी तरक्की में मजीद इजाफा होगा। वफाकी वजीर हमाद असर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई का रुझान चल रहा है। आलमी मंडी के मुकाबले में पाकिस्तान में कीमतें कम हैं। मुराद सईद ने कहा पाकिस्तान हम सब का है, फिर मौशी तरक्की से कुछ लोग सोगवार क्यों हैं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा इसहाक डार क्रेडिट कार्ड मईशत बनाकर गए थे। ग्रोथ जाली अकाउंट और हुक्मरानों की मनी लॉन्ड्रिंग में थी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के भगोड़े हैं। किस्म की कोई ग्रुपिंग का मामला नहीं है, आपस में खिलाफात का मामला नहीं है। इमरान खान की क़यादत में हम सब इकट्ठे हैं। पोजीशन के लोगों को गलतफहमी हो जाती है। सारे लुटियां डाल रहे हैं कुछ दिनों से। पार्टी में गिरोहबंदी है न इख्तलाफात। वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में सब इकट्ठे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की पंजाब में जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के साथ बैठक के बाद गुफ्तगू। कहा अपोजिशन लुटियां डाल रही थी, अब खत्म हो जाएंगी। जहांगीर तरीन को भी इल्म है इमरान खान उनकी नाजायज सिफारिश नहीं करेंगे। अली जफर पर फरीकेन को एतमाद है। प्रोग्राम सवाल ये है में कहा वजीर आज़म की हिदायत पर मेंबरान से मुलाकात की। जो हालात पैदा हुए उसमें कुछ खामियां हमारी भी थीं। शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क जाने से मुताल्लिक तमाम दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त वापस लेकर ECL में नाम शामिल करने को चैलेंज करेंगे। जस्टिस अली बाकिर नशवी अमल दरामद की दरख्वास्त वापस लेने से मुताल्लिक 24 मई को समाअत करेंगे। शहजाद अकबर कहते हैं दरख्वास्त वापस लेना सबूत है कि ब्लैक लिस्ट पर दलाइल नाकिस थे। शहबाज शरीफ झूठे दलाइल देकर मुल्क से भागना चाह रहे थे। मेरी शहबाज शरीफ को कानूनी माफनत की ऑफर अब भी मौजूद है। जिनकी अपनी कोई कानूनी हैसियत नहीं वो मशवरा न दें तो बेहतर होगा। कानूनी माफनत की जरूरत अब इमरान खान और शहजाद अकबर को होगी। मरियम औरंगजेब का जवाब। तर्जमान नून लीग ने कहा शहजाद अकबर के इल्जामात से 1 रुपया वापस नहीं आया। इल्जामात लगाने वाले सरकारी खर्च की तफसील सामने लाए। शहजाद अकबर के ओहदे की अदालत के मुताबिक कानूनी हैसियत नहीं। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट और ECL में नहीं था। ईद वाले दिन दफ्तर खोलकर तौहीन अदालत की गई। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश ने मौसम बदल दिया। सरगोदा में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। खुशाब में शेड्स गिरने से कई गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। लाहौर, फैसलाबाद, मियांवाली समेत कई शहरों में गर्दो गुबार के तूफान ने उधम मचाया। हैदराबाद में तेज बारिश, तूफानी हवाओं से ठंडी सड़क पर दरख्त गिर गए। बाईपास पर खाना बदोशों की दर्जनों झोंपड़ियां उड़ गईं। हेस्को के मुतादिद फीडर बंद। नवाब शाह, टंडू मोहम्मद खान, सजावल समेत सिंध में कहीं बादल बरसे, कहीं गर्द आलूद हवाएं। बिजली गायब होने से सुहाने मौसम का मजा किरकिरा हो गया। 3 महीने रह गए, ऑलमोस्ट जस्ट ओवर 3 months फॉर द वर्ल्ड कप। अभी तक दुनिया की टीमों ने आपके कम्बिनेशन बन चुके हुए हैं। हमारा अभी तक एक्सपेरिमेंट जा रहा है। सो नाउ इज द टाइम। बट अगेन अगर कोई है, अगर नहीं है तो वी हैव टू कैरी ऑन विद इट। पूरी दुनिया ने T20 वर्ल्ड कप टीम तैयार कर ली। हम अब तक तजुर्बे कर रहे हैं। मिसबाह हक का कोई मुतबादिल है तो कोच बदल लें। साबिक कप्तान वसीम अकरम का मुतालबा। ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा बाबर आजम नंबर 1 है, कप्तानी सीख रहा है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता तो खुशी होगी। आमिर कौमी टीम की जरूरत है। शर्जील खान मैच विनर हैं। कराची किंग्स के सदर का कहना था PSL में तगड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। कराची किंग्स को सपोर्ट करें।
खेल जहां रुका था वहीं से शुरू होगा। PSL सीजन 6 का काउंटडाउन। पहला मैच 5 जून से शुरू होने का इम्कान। खिलाड़ियों और स्टाफ की कोविड टेस्टिंग रिपोर्ट मंफी आने पर आज बायो बबल में रिपोर्ट करेंगे। टीमें 26 मई को अबू धाबी पहुंचेंगी। तमाम फ्रेंचाइजीज में 2 इजाफी खिलाड़ी शामिल होंगे। मुतबादिल खिलाड़ियों के लिए ड्राफ्टिंग में कराची किंग्स ने विकेट कीपर मोहम्मद हारिस का इंतखाब किया। मुल्तान सुल्तान ने वेस्ट इंडीज के जॉनसन चार्ल्स और शैमरॉन हेटमायर, वसीम मोहम्मद और हमाद आजम को टीम में शामिल किया। दीगर टीमों ने भी मुतबादिल खिलाड़ी चुन लिए। इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान इवेंट में शिरकत के लिए क्लियर करार। इसराइल का सीज फायर का ऐलान हमारी सिफारती कामयाबी की जानिब पहला कदम है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सलामती कौंसिल के सदर से गैर रस्मी मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीन ने भी फलस्तीन पर हमारे मौक़िफ़ से इत्तफाक किया। हक़ खुद इरादियत की फ़लस्तीनी जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़ारजा की अमरीका में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात। कहा, मौसर ख़ारजा पॉलिसी के लिए मजबूत मईशत की ज़रूरत है। इक़्तिसादी सिफारतकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। 11 रोज़ की बमबारी में कई बरसों का नुकसान। इसराइल ने गजा को खंडर बना दिया। हर तरफ तबाही के मनाजिर। 15 फैक्ट्रियाँ, 16,000 से ज़ायद मकानात तबाह, 90,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर। $322 मिलियन का नुकसान हुआ। नुकसानात का जायजा लेने के लिए UN टीम गजा पहुंच गई। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों की मदद की अपील। फतह का जश्न मनाने वाले फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली फोर्सेस का क्रैकडाउन। 50 से ज़ायद गिरफ्तार। लंदन और पेरिस में फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मार्च। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज में हज़ारों अफराद की शिरकत। सऊदी फरमारवा शाह सलमान का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन। फ़लस्तीन की आज़ादी की जिद्दोजहद की हिमायत का ऐलान। कहा, सऊदी अरब फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ जमात इस्लामी आज कराची में फ़लस्तीन मार्च करेगी। अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मार्च तारीखी होगा। जब पूरी दुनिया के बाज़ अमीर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं तो कराची कैसे पीछे रह सकता है। जंग बंदी की धुन में फ़लस्तीनियों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामले पर पाकिस्तान, तुर्की और दीगर मुस्लिम ममालिक के किरदार की तारीफ। बोले, ये तवील मामला है। मुस्लिम सरबराहों और फौजी सरबराहों का इजलास होना चाहिए। लंदन में नवाज शरीफ पर हमला या ड्रामा। लंदन पुलिस के मुताबिक वाकया जुमेरात को पेश आया। नून लीग का जुमे को वावेला। पुलिस का कहना है, हसन नवाज के दफ्तर आने वाले 4 अफराद गैर मुसल्लह थे। जाए वक़ुआ पर हमला हुआ, ना ही कोई तशद्दुद का वाकया पेश आया। वाक़े के 24 घंटे बाद वीडियो सामने लाने से सवालात उठ गए। क्या वाक़े की वीडियोस एडिट करके मीडिया को जारी की गई? मुबैना हमला आवरों के हाथों में किसी किस्म के असले की बजाय कागजात थे। मुबैना हमला आवर भी जल्दी में नहीं थे। गुफ्तगू करके अपनी गाड़ी में चले गए। लीगी रहनुमाओं ने पुलिस को हंगामी नंबर्स पर कॉल भी न की। मियां साहब के जो राइट हैंड है नासिर भट्ट, कोर्ट ने उनके अगेंस्ट ऑर्डर इशू किए कि इनका घर सेल करके मेरे पैसे पे कर दिए जाए। 2-3 दफा बैलेफिस के घर गया तामील करवाने के लिए। उन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया कि जी मियां साहब पे अटैक हो गया। मियां साहब पर कोई हमला नहीं हुआ। बरतानवी शहरी मियां इमरान का दावा। कहते हैं, मियां साहब के राइट हैंड नासिर भट्ट के साथ लेन देन का तनाज़े था। अदालती बैलेफ ऑर्डर की तामील कराने गया था। उन्होंने हमले का ड्रामा बना। पेशावर में साबिक PTI MNA की खंबे पर चढ़ने की वीडियो वायरल। इंजीनियर हामिदुल हक ने इश्तिहारी बिलबोर्ड के पोल पर चढ़कर आवाज लगाई, सेल्फी बनाओ, सेल्फी बनाओ। इंजीनियर हामिदुल हक कहते हैं, वीडियो पुरानी है। एक नौजवान ने ऊपर चढ़ने के लिए दोस्त से शर्त लगाई थी। मैंने कहा, तुम कमजोर हो, मैं तुम्हारी जगह चढ़ जाता हूं। कराची में व्हाट्सएप के जरिए मंशियात बेचने का इंकशाफ। शीरीन जनाह कॉलोनी से खातून समेत 5 रुकनी गैंग गिरफ्तार। 20 किलो मंशियात बरामद। SSP के माड़ी फिदा हुसैन ने बताया, मुल्जिमान के माड़ी डिफेंस और क्लिफ्टन में मंशियात बेचते थे। सोशल मीडिया पर ऑर्डर लेकर होम डिलीवरी की सहूलत देते थे। कराची में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी भत्ता खोर को ना बचा सका।
मेमन गोट में मुलजिम ने ईमेल पर 10 करोड़ भत्ता मांगा, पुलिस ने धर लिया। मायरा जुल्फिकार को किराए के कातिलों से कत्ल कराने का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक कत्ल के वक्त मुलजिम जाहिर जदून इस्लामाबाद 7 बट जौहर टाउन में था। दोनों की डिफेंस में अदम मौजूदगी की तस्दीक हुई। कत्ल करने वालों को किसने टास्क सौंपा, पुलिस खोज लगाने में मसरूफ। भारत में कोरोना के वार जारी, मजीद 4,194 अमवात, 2.5 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में ब्लैक फंगस और वाइट फंगस का भी वार। भारत में ब्लैक फंगस से अब तक 219 अमवात और 7,000 से जायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। और वैक्सीन लगवाएं, इनाम पाएं। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लखपति बन सकते हैं। ओहायो में 5 खुशनसीब $1 मिलियन जीत सकते हैं। मैरीलैंड में $2 मिलियन की लॉटरी। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने भी $5 मिलियन की लॉटरी मुहिम का ऐलान किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।